Assalamu alaikum class. Welcome back to the class. I hope you people will be doing great and fine. How's your week and day? Please make sure that am I audible to you people? Can you people hear me clearly? Class, please let me know that am I clearly audible to you people? Walaikum assalam, Hira. Okay, thank you, Muhammad. Thank you, Hira. Okay, class, I hope you people will be fine. Walaikum assalam, Abnaish. Okay, class. So we had basically discussed transitional devices, the usage of adverbs, verbs, and nouns. I have also assigned you people the assignment related to the usage of nouns, verbs, and adverbs. We'll be assigning you more assignments related to transitional devices and the usage of verbs, adverbs, and nouns. But our today's topic is related to correction of paragraph. This is a section basically of 6 marks in your subjective paper, which basically contains 6 to 7 different types of mistakes, and these mistakes are of different genre. They may be a mistake, they may be mistakes of subject verb agreement, they may be related to the incorrect usage of tenses, they may be related to the incorrect usage of punctuation marks, they may be related to the incorrect usage of parts of speech. So today we will be going through the correction of paragraph, their its rules basically, and we will be seeing कि जो आपका subject verb agreement होता है, इससे रिलेटेड आपका करेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स में मिस्टेक्स होती हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम उनको आज देखेंगे. But before that, I will be asking you people that what do you think about the expression subject verb agreement? What do you think of it? Walaikum assalam, Rahimeen and Dania. I have written over here subject verb agreement. What do you think of it? Use of subject and verb according to tenses. ठीक है. Abdul, good. Anyone else? Verb must be used according to the subject. ठीक है. Good. Muhammad. Anyone else? Subject के accordingly verb की form use होती है. Subject verb agreement means matching. ठीक है. Class, so basically, as the name itself is depicting, and you people have basically guessed it right, okay, we always use subject according to the verb. For example, if we talk about present indefinite tense, so if I say that sun rises in the east, so we are basically using subject verb agreement because we have a rule के आपका जो present indefinite tense होता है singular nouns के साथ हम एस और एस की यूसेज करते हैं. ठीक है. तो वो तो रूल बहुत सिंपल है, लेकिन व्हाट इफ आपके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल द डॉग एंड द कैट हैव अराइव्ड, तो फिर हमने हैव यूज करना होगा, हैज यूज करना होगा. हम व्हाट विल वी बी यूजिंग बेसिकली, बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट्स दो हो जाएंगे. ठीक है. अहमद एंड अली इज फ्रेंड, या अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स. ठीक है. सो इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो वी विल बी गोइंग थ्रू इट्स रूल. यस, आप रूल्स जो है मैं यहाँ मेंशन करूंगी वन बाय वन. And ma'am, there will be any choice with this question? It will be compulsory. It will be compulsory. It will be compulsory. Basically, it would be having 7 mistakes, and you people would be asked to identify any 6 mistakes. ठीक है. मिस्टेक ही आपके पास ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन का आपके पास चॉइस नहीं हो सकती. ठीक है. Okay, class. So the first rule, starting with the rules. The first rule is that, which is very easy, when you people will be using
the sentences of present indefinite tense, if it would be having singular subject, ठीक है, which would be including he, she and it. So you have to basically you would be agreeing the verb with it. For example, अगर मैं ये sentence लिखूं कि she run every morning, सो अभी हमारा जो वर्ब है दैट इज रन, और आपके पास सब्जेक्ट क्या है, शी। अब इन दोनों को हमने आपस में एग्री करना है। एग्री इसलिए करना है कि आपका जो रूल है वो ये कहता है कि ही शी इट के साथ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में आप क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। साथ ही आपका रूल ये कहता है कि अगर वो आपके प्लूरल्स हो, फॉर एग्जाम्पल दे रन एवरी मॉर्निंग, तो फिर वर्ब आपका एग्री करेगा प्लूरल के साथ ही, फिर आप यहाँ एस और यस नहीं ऐड करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस, ऑफ कोर्स मिस्टेक्स आप लोगों ने खुद ही आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। और दिस रूल बिलोंग्स टू योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपली यू कैन से प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पैराग्राफ में हो सकता है कि पैराग्राफ में आपको ये रूल आए जहां उन्होंने शी भी यूज किया हो, ही भी यूज किया हो, इट भी यूज किया हो, और उनके मेन वर्ब्स के साथ एस और ईएस की एडिशन नहीं की हो, ठीक है। तो फिर ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए कि आप सिंगुलर के साथ एस और ईएस की एडिशन करते हैं और प्लूरल्स के साथ नहीं करते। एनी सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड ऑफ दिस रूल? Any sentences of this rule from your side? Hira, do you have any idea about present indefinite tense? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है कि हम ही शी इट के साथ वर्ब के साथ एस और यस की एडिशन करते हैं और प्लूरल्स के साथ नहीं करते। एमन ठीक है जी, गुल ठीक है, ही गोस हु ठीक है जी, मोहम्मद ठीक है जी, एनीवन एल्स? अब्दुल, तलहा, शी गोस टू स्कूल ठीक है, दे गो टू स्कूल, इट रेन्स ठीक है। अली, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। आयशा, ओके क्लास, so the next rule is somehow यहाँ से आप लोग बेसिकली आपके रूल स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। ये तो दिस वाज वेरी इजी बिकॉज इट रिलेट्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सेकेंड रूल इज दैट क्लास के जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अहमद ठीक है, अली, दो सब्जेक्ट्स आपके कंबाइन हो रहे होंगे एंड से, तो हमेशा आप लोगों ने प्लूरल्स हेल्पिंग वर्ब्स ही यूज करने हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये तो अली लास्ट में है तो हम यहाँ इज यूज करेंगे, नो। रूल ये है कि जब आपके दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन की कराए आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो आप लोगों ने यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल मेन वर्ब्स ही यूज करने हैं। यहाँ ऐसे भी हो सकता है अहमद एंड अली प्ले टुगेदर। अब आप लोग ये समझें और सोचें कि ये तो अली है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके साथ एस की एडिशन करें, नो। रूल ये है कि जब आपके दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो यहाँ हमेशा आपके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल मेन वर्ब्स ही आएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और सिंगुलर मेन वर्ब्स नहीं आएंगे। गॉट इट? क्लास रूल की समझ आ गई है आप लोगों को? एनी एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड? सारा एंड आयना वर गोइंग टू द कैफे, जी ठीक है, गुड गुड, ठीक है। अहमद एंड अली आर स्टडीइंग टुगेदर फॉर देयर एग्जाम्स, जी गुड मोहम्मद। प्ले टुगेदर, प्ले टुगेदर, जी ऑफ कोर्स हो सकता है, वो तो आपके टेंस है, आप किसी में भी चेंज करें। वर स्टडीइंग, ठीक है। दुआ, गुड, गुल गुड, ठीक है। अबनाइश, ईशा एंड ईशा, ठीक है। दुआ, ठीक है। मोहम्मद, ठीक है। हूर, तेरा गुड, ठीक है। ओके ओके क्लास, द नेक्स्ट रूल इज
related to your correlative conjunctions. This one is the third rule. And the rule is that whenever you people will be having correlative conjunctions, for example, let me write the sentence, either the teacher or the students, ठीक है, or wrong. This is the first sentence, ठीक है. The next sentence is either the students, ठीक है जी, or the teacher is wrong. This is our second sentence, ठीक है. The third sentence is either the students or the teachers are wrong. Class, please try to understand the rule. We are specifically talking about your correlative conjunctions. Correlative conjunctions आपके कौन कौन से conjunctions होते हैं? Basically जो पेयर की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं, either or, neither nor. ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इन दोनों में, इन सेंटेंसेस में बेसिकली ये टू पेयर्स मोस्टली यूज्ड होते हैं, आइदर एंड और, नाइदर एंड नॉर. ठीक है. अब रूल ये है क्लास के, जब आप आइदर और सेंटेंस में यूज करें, ठीक है, क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैम हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या हम कौन सा मेन वर्ब यूज करेंगे. जब आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करेंगे तो जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट मीन्स के वो फिल इन द ब्लैंक के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, आपने फिर इस सब्जेक्ट को छोड़ देना है. ये जो टीचर है उसकी बात फिर आपने नहीं करनी. ठीक है. स्टूडेंट्स हैं, यू पीपल आर सीइंग, दे आर नेगेटिव, सॉरी दे आर प्लूरल, ज्यादा है, तो प्लूरल के साथ आपका आर की यूसेज हो जाएगी. वर्ब की भी यूसेज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हैव की भी यूसेज हो सकती है, ठीक है, डू की भी यूसेज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. प्लूरल है ना, सारे प्लूरल मेन वर्ब्स हैं आपके पास, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस ये है क्लास, आइदर द स्टूडेंट्स आर द टीचर. अब आप लोग सोचेंगे मैम इधर इसका कहाँ से आ गया. नियरेस्ट, जस्ट सपोज यहाँ आपके पास फिल इन द ब्लैंक है ना, नियरेस्ट टू द फिल इन द ब्लैंक इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अब आप लोग स्टूडेंट्स को छोड़ दें, उसका आप लोगों ने नहीं सोचना कि वो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है तो हम आर यूज करें या इज यूज करें. जो आपका फिल इन द ब्लैंक से बिल्कुल नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करना है. ठीक है. लेकिन अगर मैम हमारे दोनों प्लूरल्स हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स भी तो प्लूरल्स हैं और टीचर्स भी तो प्लूरल्स हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे. करीब होगा जी, बिल्कुल करीब होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज करेंगे. गॉट इट क्लास? यस असमा, यू आर राइट. Plus, have you got this rule? An example from your side, please. An examples from your side. Okay, good, nice, nice example. Either Ali or Ahmed is ठीक है Abdul, good. Neither I nor my friend. Dua, आप friend is your singular, then why you are using verb? ठीक है जी, हूँ ठीक है, फ्रेंड्स आपका आर हो गया, ठीक है, वास ठीक है, गुड. दुआ नाइदर टी नॉर कॉफ, ठीक है, गुड. ओके, एनीबॉडी एल्स? Ali, you are not participating. Let me know that you are getting the rules. Dania, you are also not participating. Aman, Hussain, Izza, Ume. Okay, ठीक है, no problem. Okay, so class, may I raise the whiteboard, please? ठीक है, अविनाश, ठीक है, okay. Muhammad is saying ठीक है, students ठीक है. Okay, class, the next rule is saying that junk food, ठीक है, is use हो गया जी, ठीक है.
Okay, so the next rule is that class ke whenever you people will be using the expressions of along with, ठीक है, as well as, ठीक है, in addition to, ठीक है, जब भी आप लोग ये एक्सप्रेशंस यूज करेंगे सेंटेंसेस में, फॉर एग्जांपल द टीचर along with the students, अब ये प्लूरल हो गया है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग प्लूरल नाउन्स, अटेंडिंग द मीटिंग। अब ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस हो गया। लेट मी राइट द सेकंड सेंटेंस एज वेल। सेकंड सेंटेंस है जी हमारे पास, ठीक है, द प्लेयर्स, ठीक है, एज वेल एज द पाउच, ठीक है, आर या इज अराइविंग सून। अब रूल के लिए, रूल को बहुत केयरफुल होके सुने क्लास के, जब भी आप सेंटेंसेस में ये तीनों एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं, along with, as well as, and in addition to, तो फिर आप लोगों ने ये नहीं देखना क्लास कि वो जो आपका फिल इन द ब्लैंक के साथ कोई सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स यूज करने। फिर जो आपका सबसे पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स चूज करने हैं। आपने फिर ये नहीं समझना कि मैम यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल्स हैं तो फिर हम आर की यूसेज करेंगे। नो, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, सो हमने टीचर को देख के यहाँ एस की यूसेज करनी है। बिकॉज वी आर यूजिंग एज वेल एज, सो प्लेयर्स को देख के हमने आर की यूसेज करनी है। फिर हमने इसके बारे में नहीं सोचना, ना हमने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है, ना हमने सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में सोचना। ठीक है? Yes, it is being recorded. Okay, so Ali, I will be sending the rules in the form of written statements while going through the notes. Notes में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, बट प्रेफरेंस ये है कि आप लोग थ्रू एग्जाम्पल्स पहले समझें। ठीक है, इनके नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। My brother as well as my cousins was invited. ठीक है, I'm a good example. मैम कहीं ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि जब आप ये एक्सप्रेशंस अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बेसिकली ये एक्सप्रेशंस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी दूसरे बंदे के बारे में कुछ बात करना चाह रहे होते हैं। अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अगर आप सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं, जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर कॉमा अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपके प्लूरल है, फिल इन द ब्लैंक, अटेंडिंग द मीटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि मैम यहाँ हम आर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है, जस्ट सपोज ऑप्शंस आर का है और एस का है बेसिकली। तो फिर जब आपके पास ये एक्सप्रेशंस यूज्ड होंगे तो फिर आपने सेकंड वाले सब्जेक्ट को बिल्कुल ही नहीं देखना कि वो आपके पास प्लूरल है या सिंगुलर है। आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है तो आप इज यूज करें, वो प्लूरल है तो आप आर यूज करें। ठीक है? द पेशेंट, ओके, द कैप्टन अलॉन्ग विद प्लेयर्स इज कमिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, मोहम्मद हसन, बेसिकली मोहम्मद तला इज सेइंग द पेशेंट्स एज वेल एज द डॉक्टर। ठीक है तला, आप इसमें कॉमर्स की यूसेज कर ले, पेरेंट्स along with their children, ठीक है, गुल, नेचुरल ट्रूथ्स लाइक अलाइज वन। असमा, ये आप किस चीज को डिस्कस कर रही हैं? ये जो आप एग्जांपल्स आपने मेंशन किए हैं, पूर्ण सेंटेंसेस करेक्ट, बट कॉमर्स की यूसेज करें आप। ओके क्लास, द नेक्स्ट रूल इज कि जब आप कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स अभी आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली जब आप डिफरेंट नाउन्स को कलेक्ट करते हैं और उनको एक सेपरेट नाउन देते हैं तो वो हमेशा हम सिंगुलर ही डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ये रूल इजी है बाय द वे क्लास। माय फैमिली, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, इज हैप्पी। ठीक है, इसके साथ साथ द क्राउड इज मेकिंग नॉइज। ये आपका कलेक्टिव नाउन है क्राउड, तो आपने इसकी यूसेज करनी। ठीक है, तो जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन्स होंगे उनके साथ आपने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स यूज करने। इन एडिशन की एग्जांपल क्या हो सकता है? The victim as well as the perpetrators can be justice, want justice। ठीक है, the view standing on it। ठीक है, हेमंत मैं आपको दे देती हूँ, रिमाइंड करना आप मुझे इस रूल के बाद, लास्ट में सॉरी। पीपल इज और आर, पीपल आर, द चिल्ड्रन इज प्लेइंग। अच्छा, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, इट इज नॉट योर कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज प्लेइंग, तो फिर ग्रुप आप मेंशन करेंगे वहां, तो आप उसको कलेक्टिव नाउन देंगे, तो फिर इज आएगा। द चेयरमैन इज अराइविंग टू द मीटिंग, द टीम इज वर्किंग हार्ड, द बंच ऑफ फ्लावर, द बंच ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल। ठीक है, class, should we move towards the next rule because it is somehow easy? The team is fighting among themselves। ठीक है, इसके बाद क्लास जो आपके जितने भी आपके indefinite pronouns होते हैं, ठीक है, indefinite pronouns are those pronouns where we are not specific about the number of pronouns। For example, if I say that ठीक है, let's suppose everyone is participating in class। एवरीवन, अब हमें नहीं पता कि एवरीवन अभी कौन कौन है, इसमें कौन कौन से बच्चे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि एवरीवन हर कोई क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर तो ये ज्यादा हो गए, तो फिर हम यहाँ आर की यूसेज कर लेंगे। नो, दे आर बेसिकली यूर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हो सकता है समबडी, ठीक है, लेफ्ट देयर बैग, किसी ने अपना बैग जो है ना यहाँ छोड़ के चला गया है। अब किसी ने, हमारे माइंड में तो यही होता है ना कि किसी ना कोई भी हो सकता है, बट नो, ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है जहां आप स्पेसिफाइड नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पेसिफिक प्रोनाउन। तो स्पेसिफाइड नहीं है तो आपने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब ही यूज करना है। ठीक है, हर्ड इज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, आर्मी इज, ठीक है जी, अ फ्लीट ऑफ कार्स, ठीक है, हुड एंड हेरा, ठीक है, nobody is attending the show tonight, ठीक है जी। Class examples from your side of this rule, hurry up। Nobody is here, everybody in class likes, ma'am, okay। ठीक है, मैम रिपीट। अच्छा, जो indefinite pronouns होते हैं ना आपके पास, somebody, everybody, nobody, no one, everyone, इनके साथ आप लोगों ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने। nobody is happy in life, अब हम कहेंगे जी nobody तो कोई भी, हर कोई तो मैम प्लूरल है। हर कोई का मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, हर कोई का मतलब है कि हम स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन कौन अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तो जब आप स्पेसिफाइड नहीं होंगे तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अली गुड, हेरा गुड, एमन गुड, मोहम्मद गुड, गुल गुड। ठीक है, ओके क्लास, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। एवरीवन, वन नीड्स टू बी काइंड इन लाइफ। जी बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम कहें कि मैम ये तो वन है, तो फिर तो वन का मतलब है कि एक ही, वन मीन्स एवरी पर्सन नीड्स टू बी काइंड इन हिज और हर लाइफ। बहुत से पर्सन है हमारे पास। ठीक है, ओके सो गुड। Plus, the next rule is whenever you are talking about amounts of money, time, and distance, basically. ठीक है,
then you people will always be using singular helping verbs. Examples: $10 डॉलर्स प्लूरल में यूज कर रही हूँ, ठीक है, एनफ। अब हमारे माइंड में क्या आता है, जी वी आर यूजिंग डॉलर्स, दे आर इन प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ आएगा हमारा आर, बट नो। रूल ये है कि जब आप मनी की बात कर रहे हो, जब आप टाइम की बात करेंगे, जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे, बेशक उनकी यूनिट्स प्लूरल हो, लेकिन आप लोगों ने वहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। 5 years लॉन्ग टाइम। हम क्या सोच रहे होते हैं, 5 years है, प्लूरल है, ठीक है, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में भी यही कहते हैं, 5 years आर अ लॉन्ग टाइम। नो, बेशक ये प्लूरल है, बट आप लोगों ने यहाँ यूज करना है इज, ठीक है। 10 miles लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। हम तो बहुत इजी हो गए, समझते हैं, माइल्स से हम प्लूरल हैं तो यहाँ लगा लें जी, आर लगा लें, यूज कर लें, बट नो, डिस्टेंस है, यहाँ आपने प्लूरल को नहीं देखना कि यहाँ आपके पास यूनिट्स हैं वो प्लूरल है। यू पीपल आर सेइंग कि मनी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, सिंपल आप लोग इज यूज कर लिया करें। एनीवन फ्रॉम द क्राउड हैज, ठीक है, एवरीवन समझ आ गई क्लास इस रूल की, कि जब आप अमाउंट ऑफ मनी की बात करेंगे या टाइम की बात करेंगे या डिस्टेंस की बात करेंगे, आप लोगों ने उनके यूनिट्स पे नहीं जाना कि यूनिट्स आर इन प्लूरल फॉर्म, तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करेंगे, आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। $10 आर एनफ, हम कहें $10 ज्यादा है तो आर यूज कर लें, नो, बिकॉज दिस इज मनी, आप लोगों ने इज यूज करना है। हम ना इज गिविंग मी 10,000 रुपीज, ठीक है, शी इज ट्रेवलिंग 35 miles from my house, I have 5 minutes to go, $1 million is more than enough to last a lifetime, good to a nice example, 1 hour is left, ठीक है, got it class or not? Okay, my brother is 50 miles away, 2 years of college is enough for making a best friend. दानिया आपकी एग्जाम्पल भी अच्छी है, बट क्लास जस्ट लुक एट एंड गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ इजा, बेसिकली दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। 2 years ऑफ कॉलेज, जी हम कहते हैं 2 years तो प्लूरल है, विदाउट थिंकिंग जी आप इसके साथ आर की यूसेज कर लें, बट नो, दिस इज द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, ईयर्स को आप लोग छोड़ देंगे, ईयर्स के साथ आप प्लूरल है और एस और ईएस हम यूज करें, वट एवर वी आर यूजिंग, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, सो आपने एस की यूसेज करनी है, आपने आर की यूसेज नहीं करनी, ठीक है। शी इज ट्रेवलिंग 35 miles, ठीक है। अच्छा क्लास, इसके साथ साथ somehow दिस रूल इज इम्पॉर्टेंट, कुछ टाइटल्स होते हैं क्लास, फॉर एग्जाम्पल आप, somehow the rule is very easy as well, titles, example mathematics, physics, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, phonetics, और यू कैन से न्यूज, ठीक है, इनिंग्स, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब ये जो आपके पास मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये तो आप लोगों को पता है, दे आर द नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स आर द नेम ऑफ द बेसिकली ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेजेस जब इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकली जब हम पढ़ते हैं, दे आर सेम लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। न्यूज तो आप लोगों को पता ही है, इनिंग्स भी आप लोगों को पता है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ वेरी फेमस नॉवल बेसिकली।
सो अब देखें यहाँ क्लास, हम इसमें वी आर सीइंग दैट दीज वर्ड्स आर इन लाइक समहाउ, एस हम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये प्लूरल है। नो, जरूरी नहीं है कि किसी चीज के साथ आप एस की एडिशन कर रहे हैं सो वो आपका प्लूरल ही है। कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ टाइटल्स होते हैं, कुछ नेम्स ऑफ द बुक्स होते हैं, कुछ बेसिकली न्यूज सॉरी अदर वर्ड्स होते हैं जिनको हमने सिंगुलर कंसीडर करना होता है। और ये सारे आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि टू इनिंग्स, सॉरी ही हैज प्लेड वेट इनिंग्स, लेट मी मेक अ सेंटेंस, ठीक है, एंडेड या फर्स्ट इनिंग्स। अब ये नहीं कि इनिंग्स के साथ आप एस देख रहे हैं तो आप यहाँ यूज करें आर, दिस इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, जरूरी नहीं है कि इसके साथ आप एस की एडिशन करें। मैथमेटिक्स सिजर्स भी हो गया, ठीक। इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, द पेयर ऑफ सॉक्स शी वॉर, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स भी ठीक है, गुड एग्जाम्पल, यूएस भी आ गया। तो उसमें फिर आपका ये नहीं कि कोई आपका प्रॉपर नाउन्स या कोई टाइटल्स के लास्ट में ऐसा आ रहा है सो आप लोग कंसिडर करें कि ये आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मस्ट आपका करेक्शन ऑफ पैराग्राफ में कोई ना कोई सेंटेंस जरूर होता है, उधर आर की मेंशनिंग हुई भी होती है तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। इज इनिंग्स के साथ इज आएगा, फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है। सिजर्स भी हो गया, ठीक है, गुड। लास्ट इनिंग्स, ठीक है, वॉज हो जाएगा, यस। गॉट द रूल क्लास। इसी तरह पॉलिटिक्स क्लास, बहुत रूल्स पढ़े हैं आज हमने, 9th 10th फर्स्ट ईयर, और आप लोग तो मार्कर्स आर बेसिकली नॉट वर्किंग। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर नाउन नॉट प्लूरल। तो आप इसके साथ ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स आर आ ट्रिकी सब्जेक्ट, आप कहेंगे पॉलिटिक्स इज आ ट्रिकी सब्जेक्ट, ठीक है। Yes, politics basically is considered to be the name of a subject. Yes, मोहम्मद, ऑलवेज। अगर आप कहेंगे कि ना कि इनिंग्स, लास्ट इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान वाज वर्स, तो ऑफ कोर्स आप वाज ही यूज करेंगे या सिंगुलर। लेकिन अगर ये कहेंगे पाकिस्तान हैज प्लेड 2 इनिंग्स या पाकिस्तान आर प्लेइंग 2 इनिंग्स, जब आप उसको स्पेसिफाई करें तो ऑफ कोर्स आप एक से ज्यादा की बात करें तो फिर वहां आर होगा, ठीक है। और ये न्यूज के साथ भी आप इसकी यूसेज करेंगे। मैम, व्हाई वी आर यूजिंग आर इंस्टेड ऑफ इज, द नाउन इज सिंगुलर इजंट। Which one? Which one is a which one? Which basically title you are discussing? We are not using are. We are using is with them. This is that's what I'm discussing. These are not plurals. They are singular. हाँ, तो ये रूल है, ये रूल है, and it doesn't have any reason. You just have to know the rule. ओहो, वो मैं आप लोग को समझा रही थी कि अगर अब हम ये तो देखते हैं ना कि इनिंग्स हैं तो हम जल्दी से आर यूज कर लेते हैं, वो जस्ट आई वाज मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द रूल। तो आपने इनिंग्स को देख के आर की यूसेज नहीं करनी, आपने इसकी यूसेज करनी है, ठीक है। और बिकॉज द साउंड इज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, tricky,
tha sound is being used? Yes, yes, Eman. Okay, class, moving towards the next rule. The next rule is that whenever you people are talking about percentages and fractions, for example, 50% of the pie, ठीक है, being eaten. ये तो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सिंगुलर ही हम यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 50% of the students passed, तो अगर आप परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं तो आपने वही रूल अप्लाई करना है जो हमारा नाइदर, नार और आइदर और आर का था। जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज करना है। पाई को देखें, इट इज सिंगुलर, सो आप हैज यूज करें। 50% को आप छोड़ दें, डू नॉट थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करें, स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, आप लोग यहाँ हैव यूज करें। ठीक है क्लास, समझ आ गई आपको इस रूल की कि नहीं? एनी सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड? दिस वाज इजी बाय द वे। ठीक है, 2/3 ऑफ केक हैज बीन ईटन। जी गुड। अब हम समझें कि जी टू और थर्ड, हम तो दो फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हम हैव की यूसेज करें? नो, आपका या जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। 2/3 ऑफ केक हैज बीन ईटन। ठीक है, एनीबडी एल्स क्लास? ठीक है अली, गुड। हैड बीन भी हो सकता है, पास्ट में कर दें। ओके क्लास, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। आप लोग एग्जांपल्स? No, though, most of the time we are using singular helping verbs with them, like percentage के साथ भी। जी, सेकेंड ईयर की ग्रामर फर्स्ट ईयर की ग्रामर से बिल्कुल रिलेट करती हैं, लेकिन सेकेंड ईयर का पेपर समहाउ ऑब्जेक्टिव पेपर, एंड देयर आर मोस्ट स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चंस इन योर पेपर जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। और पेपर बी आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूज होता है। लेकिन इसकी मेन रीज़न यही होती है कि अगर आप लोगों की ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, सो फिर आपको वरी डू नॉट हैव टू गेट वरीड। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक कि मैम तो टेक्स्ट बुक से कुछ करा ही नहीं रही अभी। 95% ऑफ पेपर इज basically consisting of grammar. So the more you are perfect in grammar, the more you are going to get good marks. ओके क्लास, नेक्स्ट रूल ये है कि आपके पास जब भी आप लोग यूज करेंगे द की यूसेज, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेट मी राइट 2 sentences over here. The first sentence is the
author and illustrator of the book is coming. ठीक है, we are using is here. But if I say that the author and the illustrator of the book are coming. ठीक है, my favorite teacher and human has arrived. So, class, the rule is this. Whenever you are using two subjects, two different subjects, but फर्स्ट सब्जेक्ट के पास आर्टिकल आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड हो रहा है, सेकंड वाले के साथ यूज नहीं हो रहा, इट्स मीन्स कि वो जो बुक के जो ऑथर हैं, जो इलस्ट्रेटर हैं, वो एक ही पर्सन है। वो एक ही पर्सन है जो उस बुक का ऑथर भी है और उस बुक का इलस्ट्रेटर भी है। तो फिर आपने इसकी यूसेज करनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड होंगे। But if we are using definite article with the first subject, along with that we are also using the definite article with the second subject, it means कि उस book के जो author हैं वो different है। For example, author जो है वो दुआ है और illustrator आपके पास एमन है। फिर आप दोनों के साथ जब आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यूज करें तो फिर इट मीन्स कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब होगा दैट वुड बी प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, वो आपका प्लूरल होगा, वो आपका सिंगुलर नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट टू सेपरेट पीपल, टू सेपरेट पर्सन्स। ठीक है, लास्ट वाली एग्जांपल देख सकते हैं कि आप कभी कभार हम कहते हैं कि ये टीचर मेरी फेवरेट टीचर है, फेवरेट टीचर भी है और इस वजह से है कि वो ह्यूमन अच्छी है। तो एक टीचर फेवरेट भी हो सकता है, वो अच्छा इंसान भी हो सकता है। Now we are discussing our teacher as our favorite and we are considering him or her as the best human। ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं और ना ही हम इसके साथ दा की, अगर दा की यूसेज करते तो फिर हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल बी यूजिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स एंड सिंगुलर मेन वर्ब्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द, सॉरी, द बेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया है जी, एमन द कोच एंड द प्लेयर्स हैव अराइव्ड। अब कोच अलग है, ठीक है, प्लेयर्स अलग है, हैव द टीचर एंड द प्रिंसिपल बोथ वर एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है जी, गुड। अब क्लास जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स की और मेन वर्ब्स की भी मिस्टेक हो सकता है आपका सेंटेंस ऐसे हो जहां उन्होंने द प्रिंसिपल लिखा हो एंड द टीचर लिखा हो, ठीक है, और प्रिंसिपल लिखा हो बोथ वर एब्सेंट यस्टरडे। तो फिर आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि यहाँ डेफिनेट आर्टिकल नहीं है दूसरे वाले के साथ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, देन वी विल बी यूजिंग सिंगुलर हेल्पिंग। ठीक है, आई होप द रूल इज क्लियर। एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड, एमन, मोहम्मद, गुल ने सेंटेंसेस ठीक बताएं जी। नेक्स्ट प्लीज, एनीवन। दिस वाज क्लास द लास्ट रूल, सम ऑफ द रूल्स आर लेफ्ट, वी विल बी डिस्कसिंग देम टुमारो। Class examples from your side, please. No, feeling bored. Gee, Jawad, you have not participated today. Is everything all right? The players and audience have arrived. The players and the audience. Audience. हाँ ठीक है, good. The pilot and the ठीक है, is a good. The famous singer and writer is Liani. ठीक है, dua good. Full class, any question, please? Any question? If not, then we will be concluding our today's class. The footballer and the cricketer are and the cricketer. ठीक है जी, good.
Class, anything that you people want to ask, please ask. Okay, no problem, Jawad. Then you need to go through the lecture. And the driver has been ठीक है जी, is a good. Okay, class. So this was all for today. We will be continuing the remaining rules tomorrow. Okay, good example. Take care then, and Allah Hafiz.